Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. So I want to start off with an announcement, but I think all of the people who actually need the announcement, they don't seem to be here at the moment. So most of them aren't here, but then this is being recorded so they can see from the recording, and I'll post it on Classroom as well. बहुत सारे लोग, I think all of them are not here at the moment. That they have been emailing me कि उनका viva के अंदर 0 आए and they want to give a viva again to me. For everybody who is having this issue, you are going to get one chance to defend yourself at the end of the term. जो भी आपके project का viva होगा, or if we end up having the exams online, then you're going to have an exam viva. So you're going to have one viva with me at the end, at which point you are going to be able to defend whatever issue you have. इस वक्त आपकी assignment को कुछ नहीं होगा. If you have a 0 on your assignment, it is going to stay a 0. You are not going to be able to resubmit it. I am not going to be doing a viva at this moment. Let me just get some people into the room. So मिस ग्रेडिंग शीट आपने अपलोड किया ताकि हम अपने मार्क्स देख लें? Talal ने upload की होगी, that's why everybody is saying stuff to me. I think the grading sheet is uploaded. You can check it. हर assignment और हर quiz के साथ आप लोगों को एक Excel sheet मिलेगी. अगर अभी नहीं भी मिली, you are going to get an Excel sheet next to each assignment and quiz, जिसके अंदर आपका breakdown जो है, you'll be able to see it. So basically I'm just announcing that I'm not replying to the emails that everybody has sent me. And again, whatever defending you need to do for your viva, जिसके ऊपर आप लोगों के 0 आए हैं या जितने भी marks आए हैं, you are going to be able to do that once at the end of term. So do not resubmit. Do not ask me for the second viva. जी same. मैम अभी join किए. क्या बता रही थी मैम? I'm just saying for those people who are having issues with the viva marks and are asking me to take the viva again, I just said that I'm not going to be taking it again tomorrow, right now. At the end of the term, you're going to have one chance to defend yourself with me when I take your final exam viva. जी Zaim. Okay. मैम मेरे और फरहाद का ना प्लेजरिज्म लगा हुआ है असाइनमेंट 2 में, और हमने क्या कहते हैं प्लेजर मतलब नहीं की, हमने चीटिंग नहीं की हुई उसमें. हमारा प्लेजरिज्म लगा हुआ है, हमारा कोड भी चेंज है. मैम सेम अली मलिक के साथ मेरा लगा हुआ है जी. मैम आप पहले दो की लॉजिक बिल्कुल ठीक बनती थी, सिंपल लॉजिक थी वो वाली. जी अभी पिछले 5 मिनट में मैंने क्या बोला है मैम? तो वो फिर मतलब ये तो आपने लास्ट ईयर जब डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाई थी उसमें क्विज दिया था. मेरे पास तो तब का मैम कोड पड़ा हुआ था, मैंने तो करके रखा हुआ था, और उसमें मेरे मतलब 10 मार्क्स थे, तो मुझे तो आता था ये, तो मैंने मैम उसी टाइम पे सबमिट करवा दिया था. Are you listening to what I have been saying or have you listened to what I have just said? मैम बस ये पूछा था कि प्लेजरिज्म वगैरह का भी वाइवा हम दे, उसका मतलब उसका वाइवा नहीं हुआ था असाइनमेंट 2 का. So whatever issues you have, you bring to me once at the end of the term. Okay, ma'am. Sure. Thank you so much. So next, what I'm going to do is कि आप लोगों का quiz थोड़ा बहुत mark हो गया. I've been able to see what the issues were. Talal is marking it, doing the grading, so you'll get that shortly. Let me address the issue. जो सबको आ रहा था. So what I've done is, this is Abdullah's code that I'm bringing up. So I can walk through and show you कि किस तरीके से आप figure out करते हो problem क्या है. Problem simple ये था कि आपने जब उसको return करना था अपनी नई list को, you had to उसका memory आपने dynamically allocate करना था, तो it was going to get sent back as a pointer. अगर मैंने अपने क्वेश्चन पेपर में लिख दिया होता पॉइंटर ऑब्जेक्ट, तो फिर आप लोगों ने फौरन से कर लेना था, बट बिकॉज आई हैड रिटन ऑब्जेक्ट, तो आप लोग उसको ऑब्जेक्ट की तरह से ही सेंड करे जा रहे थे, एंड यू weren't able to figure out what the problem was. Let me show you what the problem was. इस वक्त
इसको, are you able to see my Visual Studio? Yes, Wait, ma'am. let me share. एक second. So इस वक्त अब्दुल्ला ने जो उस वक्त solution किया था इसको, उस crashing को avoid करने के लिए, he just did this कि I'll just not return the list and I'll just print it inside the function. I guess this is what he's done. Let me see. अंदर ही print कर दिया, whereas I had asked for your function to return a list object मैंने कहा हुआ था, and what was happening when you are returning a list object was, मैं इसको update करके दिखाती हूँ. So if you did something like this, कि int list return करना, and basically the purpose of this is so that you can see कि आप debug करके अपना error किस तरीके से figure out कर सकते हो. So L3 बनाइए, and then at the end बेशक print करता रहे, that I don't really care about this. जो आंसर आ रहा है वो ठीक आ रहा है, सिर्फ रिटर्न करने में प्रॉब्लम आ रहा था. So let's do this के return L3, and what was happening was that it was return करते हुए वो crash कर जाता था. So I've run it. तो कि मुझे 3 की लिस्ट चाहिए. And it has crashed somewhere. ठीक है. So there is a breakpoint. So what you do, so I've told you what the error is, but in case आपको समझ नहीं आ रहा हो या आपको फौरी तौर बस मेरा exactly यही error आ रहा था. जी, Exactly यही error आ रहा ये था. आपका ही कोड है, ये आपका ही कोड है. So I am going to tell you how, अगर आपको नहीं पता हो कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो the way that you want to figure it out is कि you know कि यहाँ पर इधर कहीं पर यहाँ पर इसको करने से मसला है ना. So let's if we can do something like this, क्या हम यहाँ पर break point लगा लें. So maybe if you think कि problem कहीं पहले आ रहा है, so I can just wherever you think, जहाँ तक आपका ठीक चल रहा है कोड, उस जगह के इसको stop करना. मैम इसका जरा मेन जी, इसका जरा मेन दिखाना. मेन this is the main, and the printing is taking place inside the function इस वक्त. L1 print हो रहा है, L2 print हो रहा है, और get common elements के अंदर ही L3 print हो रहा है, but we want to get L3 out from there. L3 तो प्रिंट ही नहीं हुआ ना, वहीं पे तो इशू आ गया. मैं वो As in, L3 इसने इस case में अभी return जो point अब्दुल्ला ने किया हुआ था ना, L3 अंदर ही print कर दिया था. So what I'm trying to, void से कर रहा था. I'm going to void से करके he just basically avoided कि मुझे return ना करना पड़े. इस चीज़ के मैंने marks नहीं काटे because I guess this wasn't clear, but otherwise I'm still showing you how to fix the problem, because this is going to come, you're going to be faced with this repeatedly. आपने figure out इस तरह से. जी मिस, तो अगर हमने ये मिस अगर पता होता कि ये इसको अगर वो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही और इस तरह हम कर सकते होते तो ये कर देते, लेकिन मैंने तो फिर ये नहीं किया था. आपका कुछ निकल तो रहा होगा ना. मैम मैंने मतलब थोड़ा सा इसी मतलब काइंड ऑफ इस तरह से किया, पर मैंने उसमें ही प्रिंट करवाया हुआ है. मैंने रिटर्न नहीं करवाया, प्रिंट करवाया हुआ. जी. और मेरा बस जो एरर आ रहा था वो ये आ रहा था कि जो जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि 45 12 45 आ रहा था, वो इस तरह 2 बार 45 प्रिंट कर रहा था अगर लिस्ट में 2 बार 45 है तो वो जी, बस repetition मेरे नहीं से हैंडल करनी नहीं हुआ. थी. बाकी बस वो रेपिटेशन हो रही थी, बाकी सारा सही था मेरा.
So I'm trying to explain how do you figure out this error कि इसको आपने new करके करना था. The way that you do it is you put some kind of a breakpoint in wherever you're having a problem. मैं breakpoint काफी early on डाल रही हूँ because just to show you कि आपकी वो किस तरीके से हो रही है. So let's say यहाँ पर breakpoint लगा देते जिधर आपका list 2 create हुआ है. नहीं मैम हम रिटर्न कर रहे हैं लेकिन रिटर्न किस में जा रहा है? नीचे मेन में जाना चाहिए. ये इधर नहीं तो रिटर्न हो रहा. एक it doesn't रिटर्न जिधर मैंने इसको कॉल किया होगा ना वहां पर रिटर्न करेगा. सो दिस इज कॉल्ड दिस फंक्शन इज कॉल्ड ओवर हियर. यहाँ पर हो. ठीक है. और यहाँ पे मैं इस इंट लिस्ट का एक और ऑब्जेक्ट बना देंगे. वी कैन डू. हाँ यहाँ पर हम बना सकते हैं पर अभी तो ये क्रैश कर रहा है ना. सो वी आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दिस और इसको इस फंक्शन के इक्वल कर देंगे. What we wanted, I just mentioned what we wanted was a pointer, but how are you going to figure out कि pointer चाहिए था? So we know यहाँ तक तो ठीक चल रहा है. So let's put a breakpoint over here. और अब मैंने इसको कहा कि debug कर दो. So it's going to do everything that it was doing earlier. And it's going to come and stop here. And now I'm going to be able to tell it to go step by step. So I'm saying next दफा इस वक्त मैंने F10 click किया. F10 is basically, if you can't remember the shortcut, your F10 is basically a step over. So F10 means के अगले step के ऊपर चले जाओ, अगले line के ऊपर आप चले जाओ. You can execute this line and move on to the next one. You can skip this line and move on to the next one. Just a second. Sorry, I'm back. So I was saying F10 आप करोगे to move on to the next one, and then we Miss, I'm so sorry for interrupting you. मेरा नेट का थोड़ा सा इशू था. आप रिपीट कर दें. ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद आपने इसको डिबग किस तरह करना शुरू किया? From the break point. I just started. मैं इसको stop कर देती हूँ फिर से. So I just want to जब मैं ये play वाला बटन दबाती हूँ ना तो this starts with debugging. ठीक है. So I could either do this. I think इसका shortcut है F5. We'll be able to find the shortcut somewhere. But अगर आप Control F5 करते हो ना तो वो debugging के बगैर चला देता है. Even अगर आपने break points लगाए हो. लेकिन अगर आप F5 करो या आप ये करो, ये वाला यहाँ से कह दो कि मैंने debugger चलाना है. It's going to start the execution, and then we want to bring the execution to the point जहाँ पर आपने उसको रोका हुआ था. And you're going to stop over here. Okay, so we said कि next step के ऊपर जाने के लिए आपने कहना step over. I've done an F10. I don't want to step over this. I want to go into this function. So I'm going to say step into करना है. Step into F11 होता है. But if you cannot remember the shortcuts, or if you're in a different IDE जहाँ पर F10, F11 नहीं इस्तेमाल हो रहा, ये actually काफी common है. So you might even find the same shortcut across different IDEs. लेकिन अगर शॉर्टकट थोड़े से डिफरेंट हैं तो ये वाली टर्मिनोलॉजी जो है दिस इज कॉमन अक्रॉस द बोर्ड. So step into, step over, step out, ये आपको हर जगह के ऊपर every IDE is going to provide you a way to do this. So just if I'm sitting in Visual Studio, I can do F10 और अब मुझे पता है कि मैंने इस step के अंदर जाना है. I don't want to just get out of this step because यहाँ पर मैंने एक function call किया हुआ है. So I'm going to click F11 and now I'm inside my function.
और यहाँ पर मैं F10 करके सारी चीजें चेक कर सकती हूँ एंड यू कैन सी कि नीचे मेरे पास so I have opened 3 tabs. You can, अगर आपके tabs ये already खुले नहीं हुए तो you can go into debug or sorry you go into the windows नजर आ रहा है कहीं पर? मैम डिबग में पहला ऑप्शन विंडोज का था। ये windows है. So you go into windows and you pick out which windows you want to see below. Normally autos और locals जो हैं अगर आपने वो खोली हो तो उसके अंदर आपके फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स टाइप हुए इस्तेमाल आपने किए होंगे वो सारे के सारे उसके अंदर आ जाते हैं एंड इफ यू वांट टू ऐड अ कपल ऑफ अदर्स और इफ यू वांट टू ऐड अनदर सेट दैट यू वांट टू मैनेज तो आपके पास ये वॉच है 4 वॉचेस हैं यू कैन ऐड एज मेनी एज यू वांट जब आपके प्रोग्राम्स बड़े होते हैं तो अक्सर औकात यू वांट के 4-5 टैब्स आपने रखे हो ताकि डिफरेंट एरियाज के आपने वेरिएबल्स जिनके ऊपर यू वांट टू कीप एन आई ऑन वो आपने अलहदा से ऑलरेडी सेट करके रखे हो ताकि आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ रही हो. So this is a simple program. So I've just created one watch. इसके अंदर में भी कोई पुराने values पड़े हुए हैं so I can just take these out. और locals के अंदर ये already पड़ी हुई होंगी because इस जगह के ऊपर there is a D. You can see D के अंदर 3 पड़ा हुआ है इस वक्त. You can see your L1 इसको अगर आपने डेप्थ में देखना है तो you can click on it or you will see other details. So आपको ये सारे के सारे variables मिल जाएंगे इंस्पेक्ट करने के लिए. At this point हमारा variable inspection problem नहीं है because I think आपने अपना algorithm तो ठीक चला लिया, intersection आपका ठीक तरीके से निकल रहा है. So we'll just say के और if you wanted to check it तो आप इसको check भी कर सकते थे. So this is going through the loop and it's doing everything that it wants to जो आपने उसको कहा हुआ था कोड के अंदर. So it's going through the loops. अब मैं यहाँ पर आई हूँ and अब मैं कह रही हूँ return list the. अब मुझे पता है कि यहाँ तक सारा कुछ ठीक चला है. As soon as I do this return L3 तो मैं यहाँ पर आई हूँ and there is a crash. So I am going to say कि अच्छा ठीक है, let's close this. Something is happening over here. Which if you're यहाँ पर मैं लगाती हूँ एक और break point. So I come over here and can you kind of guess कि जब function exit होता होगा तो क्या होता होगा? मिस आई थिंक वो रिटर्न नहीं हो रहा उसका एड्रेस देना है हम लोगों ने एड्रेस से किसी तरह इसको एक्सेस करना पड़ेगा. What is happening is let me see. ये देखो क्या हुआ मैंने F11 press किया and where have I landed? डिस्ट्रक्टर. So that variable is going out of scope. वो मैंने एक local object declare किया था. It has gone out of scope क्योंकि वो dynamically allocated नहीं था. Your list is destroyed F10 and I did another F10 और अब मैं यहाँ से निकल अभी मैं अंदर ही हूँ मेरी list destroy हो रही है because I am exiting this function. अब मैं यहाँ पर आई हूँ and that list doesn't exist because it's been destroyed and I am trying to assign it to common list. इसलिए वो इस जगह के ऊपर जाके it's just crashing. So once I see this, मिस वो जो मैं आपसे टेस्ट के बीच में एक बात कर रहा था कि हम लोगों को एक तीसरा वेरिएबल लेना चाहिए जिसमें हम लिस्ट भी खुद पास करें और वो लिस्ट रिटर्न हो. अगर वो सिचुएशन होती तो ये एरर नहीं आना चाहिए था. so what you want to do is आपको कैसे पता चला वर्चुअल की तरफ आपने एज ए डिस्ट्रक्टर की तरफ जाना था? मुझे पता चल गया ना यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही थी इधर. तो अब जब मैंने नेक्स्ट दफा सॉरी इधर नहीं इज इट हियर सॉरी यहाँ नहीं थी यहाँ से आगे मैं निकल आई थी मैंने कहा था यहाँ पे प्रॉब्लम है. ठीक है तो मैंने इसको फिर से चला मैंने ब्रेक पॉइंट चेंज करके सॉरी मेरा पिछला चल रहा है सो इट्स कॉजिंग मोर प्रॉब्लम्स. जस्ट गोइंग टू टर्न इट ऑफ. अच्छा सो पहला वाला ब्रेक पॉइंट था मैंने हटा दिया. नया ब्रेक पॉइंट मैंने इधर लगाया बिकॉज आई फिगर्ड आउट पीछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था. सो आई हैव रन इट अगेन. इट इज स्टॉप्ड हियर एंड अब मैंने किया है कि F11 प्रेस कर दिया एंड वेयर हैज इट लैंडेड?
ठीक है, डिस्ट्रक्टर का in my destructor. Generally speaking, जब आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है ना, तो आपको वैसे ही आइडिया आ जाता है कि ये डिस्ट्रक्टर का कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, एंड व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इवन प्लेस अ ब्रेक पॉइंट हियर, ठीक है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल आपके बिल्कुल दिमाग में भी नहीं है कि ये डिस्ट्रक्टर का प्रॉब्लम है, बट इफ यू जस्ट रन इट विद ब्रेक पॉइंट से बारी बारी करके चलाओगे, तो यू आर गोइंग टू लैंड ओवर हियर एंड यू आर गोइंग टू सी कि अच्छा दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग, व्हिच मींस दैट आई हैव टू हैंडल इट समहाउ कि डिस्ट्रक्टर इस वक्त नहीं चले। और वो डिस्ट्रक्टर इसलिए इस वक्त चल रहा है बिकॉज यू आर क्रिएटिंग मेमोरी लोकली, और वो मेमोरी जब लोकली क्रिएट होती है तो बेसिकली वो आपके बिकॉज उसको उस आपने उसका डिस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जिसमें आपने मेमोरी उसकी खत्म वापस की हुई है, तो इट जस्ट डिस्ट्रक्टर चलता है जब आपका ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, इज व्हाट इज रिटन इन ऑल ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। आउट ऑफ स्कोप जाने का मतलब है कि L3 आपने इस जगह के ऊपर डिफाइन किया था, सो L3 इज सिटिंग समवेयर ओवर हियर, ये आपने यहाँ पर किया था, इसका स्कोप खत्म हो जाएगा जैसे ही आप इस फंक्शन को एग्जिट करने की तैयारी कर रहे होगे। सो इट बेसिकली इट इज डिस्ट्रॉइंग इट बिकॉज इट इज अ लोकल वेरिएबल। लेकिन अगर हम डायनामिक, एक तो वो भी सोल्यूशन हो सकती थी कि आप यहाँ पर तीसरा डाल देते पैरामीटर और उससे वापस कर देते। आई वाज सेइंग कि इधर से रिटर्न करो। सो रिटर्न करने का तरीका ये है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग योर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड स्टैटिकली, यू से कि मैंने इसको डायनामिकली क्रिएट करना है और मैं उसको पॉइंटर के थ्रू वापस भेज दूंगी। सो वेयर वी हैव आवर, दिस इज योर एंड लिस्ट, राइट। सो आई विल से कि ये पॉइंटर होना चाहिए, एंड देन आई एम गोइंग टू मिस एंड पे उसका एड्रेस रिटर्न कर दें, ये इसको इस तरह ना करें। नहीं, उसका अब जो पहले हुआ था ना, खाली जो L3 था, L3 पॉइंटर नहीं था, वो उसका अगर आप एड्रेस भी रिटर्न करोगे ना, तो दैट थिंग इटसेल्फ इज गोइंग टू बी गॉन। जब आप न्यू करते हो ना, न्यू मेमोरी आपके पास पड़ी रहेगी, अब ये वाला न्यू। सो यू से अब इसके अंदर ना 2 लेवल्स के न्यू हो रहे हैं, सो डोंट कंफ्यूज देम। एक न्यू अब ये वाला हो रहा है और एक न्यू इस लिस्ट के अंदर हो रहा है उन इंटीजर्स को होल्ड करने के लिए। सो वो नंबर आपने क्या लिया था जिसके ऊपर आपने साइज क्या रखा हुआ था, इसको इनिशियलाइज किससे किया हुआ था? I forgot. डी रखा हुआ था, D रखा हुआ था। So we put the D in here and now we want to just do this कि जिस जगह के ऊपर L3 डॉट था उधर हम L3 arrow करते हैं। So you have your insert over here. L3 हमारा पॉइंटर रिटर्न हो जाएगा एंड व्हेन वी आर बैक इन मेन, यहाँ पर मैं कर सकती हूँ and I can do job printing in main. So now it should work out correctly. अगर अब मैं पिछला एग्जीक्यूशन मेरा चल रहा था उसको मैंने रोका है, मैंने ब्रेक पॉइंट नहीं हटाया था हमने। ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। ऐसे कंटिन्यू एंड उसने एग्जिट कर दिया और उसने कोई वो भी नहीं दिया। एल्गोरिदम आई डेंट चेक येट बट आई थिंक आपका एल्गोरिदम ठीक है। वैसे एल्गोरिदम इज फाइन। डबल वाला मैंने चेक नहीं किया इस वक्त, मैंने इसके अंदर से मसला वही वाला फिक्स किया है कि आपका मेमोरी एलोकेशन प्रॉब्लम कर रहा था। सो आई हैवंट मैंने इस चीज के मार्क्स नहीं डिडक्ट किए अगर आपका क्रैश कर रहा है एंड के ऊपर या कुछ कर रहा है। आई हैव फोकस्ड बेसिकली ऑन दिस कि आपने ये वाला कैलकुलेशन जो है ये ठीक तरीके से कर लिया और अपने इंस्ट्रक्शंस मोर और लेस फॉलो किए हैं। इफ इट इज क्रैशिंग आई हैवंट डिडक्टेड मार्क्स। सो दिस इज बेसिक। इसका मकसद सिर्फ ये था कि अगर इफ यू आर गेटिंग स्टक, जी जी
मैं यही कह रहा था आपको, मेरा भी इशू आ रहा था और मैंने भी वहाँ पे मैं बार बार उसको ड्राई रन करके चेक कर रहा था ये कहाँ पे फंस रहा था। तो मुझे भी आइडिया हो गया था ये डिस्ट्रक्टर का ही मसला, तो मैंने उसी रात को है ना प्राइवेट कमेंट में आपके लिए मैसेज भी लीव कर दिया था कि मेरे साथ ये हो रहा था मैम, वो क्रैश नहीं कर रहा था, वो आंसर दे रहा था लेकिन आंसर के साथ एरर दे रहा था, मैं सी लाइन पे कर रहा था, मैं इसमें नहीं कर जी रहा था। जी जी तो वो सही आंसर भी दे रहा था और उसके साथ फिर पॉइंटर नॉट फ्रीड वाला एक एरर दे रहा था मुझे। पॉइंटर नॉट फ्रीड का वो कोई और प्रॉब्लम हो सकता है फिर इफ यू फिर मैंने वो डिस्ट्रक्टर बंद किया, कमेंट आउट हम्म किया, उसके बाद मैंने चलाया तो परफेक्टली एग्जिट 0 के साथ एग्जिट हो रहा था। सिर्फ डिस्ट्रक्टर मैंने कमेंट आउट किया। जी जब when you comment out the destructor ना, तो अगर अब मैं अब्दुल्ला का कोड रिवर्ट भी कर दूं ना तो फिर अब्दुल्ला के कोड में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज प्रॉब्लम एक्चुअली ये हो रहा था कि जब आप डिस्ट्रक्टर में जाते थे, डिस्ट्रक्टर में आपने लिखा हुआ लिस्ट खत्म कर दो अंदर वाली, इट्स गॉन, सो दैट वाज देन क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। सो सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज इस पॉइंट के ऊपर आके सबको सिमिलर इश्यूज आ रहे थे। सो अगेन इफ यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ एन एरर जिसके अंदर काम सारा हो जाता है लेकिन बस वो एंड के ऊपर जाके मेमोरी एलोकेशन से प्रॉब्लम कर रहा है, तो दैट आई हैव नॉट पेनलाइज्ड, बट अदरवाइज इंस्ट्रक्शंस आपने बेसिकली फॉलो किए हो उसके हिसाब से वो देख रहा, आपने एरर ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लिया और ट्रिवर्स कर लिया एंड सो ऑन। सो जस्ट अगेन इसका मकसद ये था कि आप थोड़ा सा ना लाइक डीबगर, यू कैन स्टॉप द डीबगर, अगर आपने उसको चला लिया तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, आपके पास एक रन टू कर्सर का ऑप्शन होता है, इसको मे बी रन करेंगे तो चलाएंगे कि अगर आपने रन किया एंड यू वांट टू स्किप थ्रू ऑल ऑफ दिस, यू जस्ट टेक योर कर्सर टू वेयर यू वांटेड टू गो और फिर आप रन टू कर्सर करते हो तो वो उस लाइन के ऊपर चला जाता है। यू कैन जस्ट स्किप पास्ट all of this mess that you know के ठीक तरीके से चल रहा है or that you are not interested in at that moment. So आप लोगों को जितना जितना आप लोगों की चीजें complex होती जाएंगी, you are going to need to rely on the debugger. So do use it to figure it out. कभी जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो ये जो अभी प्रॉब्लम आ रही थी ये आपको वैसे ही पता चल जाएगी कि डिस्ट्रक्टर की वजह से आ रही थी। जैसे ही वो आखिरी लाइन के ऊपर ब्रेक करेगा आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये वो कंस्ट्रक्टर की वजह से हो रहा है। बट if you are unable to figure out for some reason, तो आप just see what is happening and you will know कि किस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है। So I am going to move on to the lecture. So what we want to see is another configuration or another kind of a design feature in linked lists, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि so we saw a regular linked list, then we saw a configuration जिसके अंदर आप वो कर सकते थे, डबल लिंक्स के साथ करते थे। एक लिंक की बजाय आपने दो लिंक डाले होते थे हर नोड के अंदर, एंड एवरी नोड न्यू कि उसके पीछे क्या पड़ा हुआ है, उसके आगे क्या पड़ा हुआ है, एंड यू हैड सेंटिनल्स to tell yourself कि ये list का either one of the ends either one of the ends of the list has been reached. अब आपके पास एक नई variation आ रही है इसके लिए, in which you are saying that my list is going to be circularly linked, जिसके अंदर the main feature over here is just this कि जब links बने होंगे तो वो जो आखिरी वाला link है, instead of pointing to null as we had been doing earlier, वो आखिरी वाला जो आपका एलिमेंट है वो एक्चुअली फर्स्ट वाले एलिमेंट के ऊपर पॉइंट कर रहा होगा, एंड इट्स गोइंग टू टर्न द कॉन्फ़िगरेशन इनटू अ सर्कुलर वन। So this is the basic जो crux of the idea. It is just this कि your list is no longer get stopped with the null at the end, basically अपने पहले वाले चीज के ऊपर पॉइंट कर रही होती है। So this is a circularly linked list, और इस particular configuration के अंदर, so I'm saying इस particular because हर टेक्स्ट बुक के अंदर ये नहीं होगा, या फिर हर implementation of a circularly linked list के अंदर ये नहीं होगा कि एक कर्सर को डिसाइड किया होगा कि हमने कर्सर बैक के ऊपर रखना है।
सबसे पहले तो कर्सर इज द सेम कॉन्सेप्ट जो आप लोगों की लिस्ट वाली असाइनमेंट में कर्सर का कॉन्सेप्ट था, that you need something inside your list जिससे आप किसी एक नोड का रेफरेंस होल्ड कर रहे हो, so that you have a way of going through the entire list. So for this particular implementation they have decided कि हमने बैक वाले जिस नोड को हम बैक के तौर के ऊपर कंसेप्चुलाइज करेंगे, we are going to call that the cursor. और कर्सर के कर्सर जो कनेक्टेड होगा वो बेसिकली वापस हेड के ऊपर जाके या फ्रंट के ऊपर जाके कनेक्टेड होगा. आई एम नॉट कॉलिंग इट हेड, और इधर फ्रंट को एक्चुअली ब्रैकेट्स में डाला हुआ है बिकॉज ये जो ब्रैकेट्स में चीजें लिखी हुई हैं these are for your conceptual understanding. जो एक्चुअल हमने मेंबर वेरिएबल्स रखे होंगे अपने कोड के अंदर for this implementation, that is just going to be your cursor. और नोड का स्ट्रक्चर उसी तरह से जिस तरह से आपकी पहली वाली लिस्ट के अंदर था कि आपके पास so you have the part that is holding the data, but additionally you have another part that is holding information on how to move on to the next piece of information. So this is your node जिसके अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है और आपका नेक्स्ट पॉइंटर पड़ा हुआ है. So again the only new thing over here is कि अब आपकी आखिरी नोड जो है वो आपके पहले नोड के ऊपर आपने पॉइंट करना है ताकि आप kind of in a circle move around कर सको. So इसका implementation, one possible implementation is you will need a node जिसके अंदर आपने element रखा होगा और उसके अंदर आपने एक next रखा होगा. Friend we need to do ताकि ये आपके private elements आपने रखे हुए हैं to follow object oriented conventions, लेकिन आप चाहते हो कि circle list C node को इस्तेमाल कर रहा होगा, so let it access all of these member variables easily. In your circle list, so again वही चीज हो रही है कि आपको अपने लिस्ट को represent करने के लिए एक क्लास चाहिए जो कि एक एक नोड को represent कर सके. So one class to model one node and one class to model an entire collection of nodes. So the first one is your C node and the second one is your circle list. और अगेन अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट जो है दैट इज होल्डिंग, जिधर से आपको इसके सारा डेटा के ऊपर एक्सेस मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ पॉइंटर टू द नोड दैट यू हैव डिसाइडेड. मैम मेरा ना एक्चुअली इंटरनेट लैग कर गया था तो आई मिस्ड इट फ्रॉम द पॉइंट जहां से आपने सर्कुलर लिस्ट शुरू की थी. फ्रॉम हियर यहाँ पे आके इंटरनेट लैग कर गया था मेरा. आई मिस्ड इट. So I was just saying it's recorded so you can look over it again, but if I go over it quickly, आपके पास इस वक्त आपके लिस्ट के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो चेंज आ रही है सिर्फ ये आ रही है कि पहले जो आपका रेगुलर लिस्ट होते थे वो जब एंड होता था तो वो एंड नल के ऊपर करता था. अब आप एंड नल के ऊपर नहीं कर रहे. You're saying कि the end of my list, so imagine कि conceptually आपकी list का शुरू वाला part ये है और आपका end वाला part ये है, but now you're saying my end is not going to go into oblivion, वो null के ऊपर नहीं जा रहा होगा. You're going to say कि वो basically वापस front के ऊपर point कर रहा है. ठीक हो गया. So this you have a null की जगह front पे point हो रहा है. You have a configuration जिसके अंदर आपके nodes जो हैं वो रुकते नहीं है, वो circle के अंदर जाते जाते हैं. ठीक है. But you can't, आपको फिर भी अगर आपने circular configuration के अंदर भी रखा हुआ है तो you still need a way to kind of think about the list in an organized manner. So एक तो हम अपने diagrams के लिए हमने ये convention इस्तेमाल किया कि हम सोचेंगे कि अगर ये मेरी list का front है और ये मेरी list का back है तो we are going to be labeling them with front and back. और code के अंदर इस चीज का to keep a handle over this thing, we're going to keep just one data element called cursor, which we have decided, or which this implementation has decided कि हम जो वाली cursor जिधर point कर रहा होगा उसको हम conceptualize करेंगे as the back of the list. And you can see कि फिर cursor का next जो है उससे आपको front मिल जाएगा. So the variable that we are going to be holding that is going to allow us to handle the list and navigate through the list and manipulate the list is going to be cursor. लेकिन जब हमने list की बात करनी है और हमने कहना है कि हम list के front की बात कर रहे हैं या back की बात कर रहे हैं तो फिर हम जब back की बात कर रहे होंगे that is going to be the element that is being pointed to by the cursor.
और जब हम फ्रंट की बात कर रहे होंगे that is going to be the element जो कि कर्सर वाले एलिमेंट की अगली वाली एलिमेंट है, because this is connecting to the start of the list. So configuration ये वाला हम पिक कर रहे हैं. इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए we need two classes again, जिस तरह से हमें पीछे हर जगह के ऊपर चाहिए होती थी. We used to need a class जो कि एक नोड को represent करेगा, and we used to need a class जो कि पूरी की पूरी लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेगा, मॉडल करेगा. This is our first one. This is our C node. C node के अंदर you have the main thing. This is your data. Address for the next or string element. And the data. जिसको आपने रखना है. इस वक्त हमने इधर string लिख दिया तो इसके अंदर string आएगा. But because this is type type, आप इस string को change करके पूरे के पूरे code को adapt कर सकते हो to whatever type you want to use it for. So ये आपका data वाला part है और ये आगे जाने वाले information बताने वाला part है. So a C address node pointing वाला is a pointer to another C node. अब this is your actual list. So वो एक node का model था या एक node का structure था. This is your entire list. And as I said, आपने पूरे के पूरे list को के ऊपर grip अपनी रखने के लिए you just need this cursor over here, जो कि C node के type का pointer होगा. और उसके बाद ये सारे के सारे जो functions हैं kind of वही वाले pattern follow कर रहे हैं जो हमने पीछे अपने textbook के अंदर से functions किए थे. And then you would have noticed कि मैं practice के अंदर एक दो और functions add करा देती हूँ just so that you can practice moving around on the list. So we have a constructor, we need a destructor. आपने एक empty का function डाल दिया because you might need to use it a lot. आपने अगर front वाली element check करनी है क्या है तो you have a front function. If you want to check the back element, you have a back function. क्योंकि अब इस implementation के अंदर हमने cursor का concept add कर दिया just to see it from a different point of view. Again, you might see implementations of circle list जिसके अंदर cursor नहीं है, उन्होंने head करके ही manage किया हुआ. That is fine. Circle list के अंदर important चीज सिर्फ यही है कि आपका end जो है वो आपके start के साथ connected हो, and basically आपके elements जो हैं वो एक logical circle के अंदर आ रहे हो. इधर आप कर्सर रखते हो, हेड रखते हो, उसको मूवमेंट करने की इजाजत देते हो या नहीं देते, वो फिर पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है. बट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कर्सर ओवर हियर एंड द कांसेप्ट इज द सेम एज द कर्सर कांसेप्ट जो आप लोगों की असाइनमेंट आई गेस 1 थी उसके अंदर था. सो मिस ये बैक वाला फंक्शन कैसे काम करेगा? पिछले वाले लिस्ट देखो, आपके पास ये है ना, ये जी बैक का मतलब है कि so अब when I'm talking about the list from the outside, I don't really care कि कर्सर किस तरीके से और क्या हो रहा है. I just want to kind of say कि मुझे लिस्ट की बैक निकाल दो. So आपकी लिस्ट के अंदर कर्सर is pointing to the back. So बैक तो सिंपल होगा, वो कहेगा कर्सर के अंदर जो कर्सर जिस एलिमेंट के ऊपर पॉइंट कर रहा है वो प्रिंट कर दो. तो मैम अच्छा, तो अगर हम लोग कर्सर को मूव अराउंड करते हैं तो we land at a specific node basically. जब आप कर्सर को मूव अराउंड करोगे ना, so we do, so as you have seen, और if you are already thinking कि क्योंकि वो कर्सर है तो फिर हमने उसको मूव करने का भी कोई फैसिलिटी दिया होगा, तो we do have an advanced cursor. और एडवांस कर्सर से ना कर्सर को एडवांस करने का मतलब सिर्फ ये है, सॉरी, कर्सर को एडवांस करने का मतलब ये है कि आप यू आर गोइंग टू से कि आई एम गोइंग टू मेक दिस द कर्सर. जब ये कर्सर बन जाएगा तो बेसिकली आपने अपने लिस्ट की ओरिएंटेशन जिस तरीके से आप लिस्ट को इमेजिन कर रहे हो ना, वो फिर कर्सर के हिसाब से काइंड ऑफ एडजस्ट कर लेनी है. तो इफ यू से मूव कर्सर, तो बेसिकली ये हो रहा होगा कि जो कर्सर का एरो आपको BOS के ऊपर पॉइंट होता हुआ नजर आ रहा है, यू आर जस्ट गोइंग टू से इसको यहाँ पर मूव कर दो, एंड देन आई एम गोइंग टू इमेजिन दैट दिस इज नाउ द बैक ऑफ माय लिस्ट. तो मिस अगर हम लोग उसको एडवांस करेंगे वो BOS से LAX में चला जाएगा और फिर LAX बैक बन जाएगा, और फिर जब हम उसको दोबारा अगर एडवांस कॉल करेंगे तो फिर वो MSP पे जाएगा. फिर वो MSP पे चला जाएगा. ओके, फिर MSP उसका बैक हो गया और फ्रंट LAX बन गया. So what is going? कर्सर आगे जाएगा, LAX बैक बन जाएगा, तो फ्रंट क्या होना चाहिए? MSP. मैं बताती हूँ. You are going to do. So you are going to do this. You are going to say
कि इस कर्सर को मैंने एडवांस करना है, बेसिकली यू मीन कि अब ये कर्सर हो गया। So the way you want to imagine it कि अब हम क्योंकि इसको इस configuration में imagine कर रहे हैं, again इतनी नीट शक्ल जो है वो आपके मेमोरी के अंदर नहीं होगी। ये नीट शक्ल हम सिर्फ अपने काइंड ऑफ मेमोरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो वी आर जस्ट गोइंग टू फॉलो दिस कन्वेंशन एंड वी आर गोइंग टू से कि अब कर्सर एडवांस होने के बाद लेट मी जस्ट मेक द कर्सर वैल्यू ओवर हियर। सो दिस इज गोइंग टू बी LAX यहाँ पर आ जाएगा और आपने कोड के अंदर सिर्फ कर्सर को मूव किया होगा, ठीक है। सो योर कर्सर इज पॉइंटिंग हियर। अब आप देखो कि कर्सर के आगे क्या पड़ा हुआ था। सो वेयर शुड कर्सर को आगे किधर पॉइंट करना चाहिए? MSP के आगे फ्रंट था तो MSP फ्रंट बन जाएगा। सो वी आर गोइंग टू से ये यहाँ पर आ गया और बाकी आपकी चीजें जो हैं you are going to have your ATL over here, you are going to have your BOS over here because बाकी के सारे links जो हैं वो उसी तरह पड़े रहे हैं। So now you are going to imagine this as just अब ये जो front और back है ना, ये सिर्फ वो हैं kind of ways for you to imagine the list। So उसी तरह से अब you will say कि ये आपकी list का front बन गया और ये आपके list का back बन गया because you moved the cursor। So it cursor move करने का सिर्फ मतलब ये है कि you are just moving this pointer and you are moving it to the next element। next element के ऊपर move करने से आपकी basically list की orientation बदल जाएगी। structure वही रहेगा, links सारे वो रहेंगे लेकिन orientation बदल जाएगी। So if you have for instance आपने इसका print ऐसे अगर बनाया हुआ है कि front से start करो और आखिर back वाले element तक जाते जाओ, so what you are going to want to do is आपके code के अंदर तो कोई front और back नहीं होगा, आपके कोड के अंदर कर्सर होगा। So what you want to do is you want to say कि कर्सर के नेक्स्ट वाले एलिमेंट से स्टार्ट करो और आगे जाते जाओ जब तक कि आप कर्सर के ऊपर भी वापस पहुंच जाते और फिर रुक जाओ। If you have this print, तो वो वाला प्रिंट जो है वो इस वाली लिस्ट को LAX MSP ATL करके प्रिंट करेगा और इस वाले लिस्ट को वो MSP and so on करके प्रिंट करेगा। So just the next thing is just doing, it's just आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। So we have an advance which is supposed to just say कि इस वक्त आप जिधर बैठे हुए उससे अगले वाले एलिमेंट को अपना रेफरेंस पॉइंट बना लो। We are going to say an add और add की again अब add आपको सोचना पड़ेगा कि add किस तरीके से करना है। So we have decided for this implementation कि add का मतलब है कि कर्सर के आगे add कर दो और remove का मतलब है कि remove the node which is after the cursor। So जिधर भी cursor इस वक्त है उसके अगले वाला आपने node आपने remove करना है and then you have your cursor pointer जिससे आपका सारा कुछ manage हो रहा है। If we look at our constructor, तो you are just saying कि cursor को null के ऊपर set कर दो because हमारे पास सिर्फ यही चीज़ है to kind of manage the list। So from a list that is starting from scratch, you just want to say circle को null कर दो और destructor के अंदर we are using so symmetric, the pattern is symmetric from what you saw in the previous lists। destructor के अंदर आप ये कर रहे हो कि you are saying कि remove का function call करते जाओ because I have already written it। So just keep calling remove until you find out that your list is empty and you cannot remove any more elements। So ये आपके basically bookkeeping functions हैं। Next we have a function to check whether your list is empty। So what was indicating to us that the list is empty? null cursor। अगर cursor आपका initially so initialize हमने null पर किया था, अगर वो empty भी हो जाएगा तो वो null के ऊपर आ जाएगा। So if your cursor is null तो इसका मतलब है आपका list empty है and it's going to return true, otherwise it is going to return false। अब आप कह रहे हो कि list का back return करो। So conceptually we need this element और इस conceptual element को code के अंदर access करने का तरीका basically ये है कि your cursor is pointing to the back, so you just say कि cursor वाला element जो है उसको return कर दो। If you want the front element तो आपका reference point यही है, तो इसको access करने का तरीका ये कि ये cursor के next के अंदर पड़ा हुआ है। So if you want to access the front element, you are just going to say cursor के next के element को return कर दो।
एंड कर्सर का एडवांस्ड इज जस्ट एज वी सॉ अर्लियर, कर्सर का एडवांस सिर्फ ये कर रहा है कि देख रहा है कि मेरे से अगली वाली जगह का एड्रेस क्या है और कर्सर को अब उसके ऊपर पॉइंट कर दो. सो योर कर्सर इज जस्ट गोइंग टू पॉइंट to whichever next element is sitting, whichever next node is sitting in its sequence. So now we have the code which is going to add an element after the list. So we have to tell it कि ये वो value है जिसकी node मैंने insert करानी है. So we are going to do, आपके पास इसके अंदर दो cases हैं. If you look at the if else, one case is saying the list is empty and the other case is saying the list is not empty. So what we are going to do is, ये जो नीचे diagram बना पहला वाला केस में इसी के ऊपर कर रही हूँ. So the first case that we are doing, we are imagining कि आपके पास लिस्ट में 4 चीजें पड़ी हुई हैं और आपको मैं कहती हूँ कि इसके अंदर एक और ये डाल दो, इसके अंदर some other element C कर लेते हैं. So an element C you want to add in here. So what you're going to do is you're going to say कि I want to create a new node. So you created a new node V. उसको आपने नया new एक pointer लिया और उसको नई memory allocate कर दी है. So I'm going to create it over here. This is your new C node and you have created a V pointer to point to it. अब आप कह रहे हो कि V के element के अंदर E डाल दो. So we have decided कि E के अंदर आपके पास एक string आ रही थी जिसमें सिर्फ C लिखा हुआ था. So we are going to put our C in here. इसके दो पार्ट्स हैं, एक आपके पास पॉइंटर वाला पार्ट और एक एलिमेंट वाला पार्ट है. सो योर वी द नोड दैट इज पॉइंटेड टू इज रेडी. क्या आपको पता कैसे चलता है कि आपका लिस्ट एम्प्टी है? अगर कर्सर ना लो के फैक्टर्स है. So first we're checking is the cursor equal to null. It is not equal to null because इस वक्त list empty नहीं है. So we're going to skip this for this first run. उसके बाद आप ये करोगे कि basically you are going to say दूसरा केस ये है कि आपके पास लिस्ट पड़ी हुई है. So you then do this. अब आपने करना क्या? You just need to update the links, right? So you're saying सबसे पहले तो आपने इसको fit into करना है into the list. So V का next मैंने set करना है cursor के next के ऊपर. So cursor का next कौन है इस वक्त? LAX. So इसको मैं इसके ऊपर point कर दूंगी और उसके बाद आप कह रहे हो कि cursor का next जो है, so cursor का next is this long arrow is equal to V. So it's just going to do kind of this और ये वाली चीज हट जाएगी. And can you see ये list उसी तरीके की बन गई है जैसे पहले बनी हुई थी. So you just have something added to और conceptual front अब आपका ये वाला बन जाएगा. So front we are not actually updated in the code. Front आप सिर्फ इसलिए एक term इस्तेमाल कर रहे हो so that you can think of the front and the back of the list, because जब आपने printing वगैरह करनी होगी तो you are going to have to think about the list in terms of what is happening at the front or at the back. अब इसी का दूसरा केस अगर हम देख लें, so this is an insertion. If you already have some element sitting inside the list, then we just want to do this case जहाँ पर आपका ये जो है cursor है वो null के ऊपर पड़ा हुआ है. So your cursor is null, so you don't have anything. You are going to come in, you are going to say मुझे एक नई node बना के दो. उसके अंदर again let's put a C in and let's C के इसको आगे से क्या करना है. So V के element is equal to E is the C. And now we're doing this. So ये V ही है. So we have the V to kind of refer to this. अब मैं कहूँगी V का next, sorry, if the cursor is equal to null, that means that I have an empty list. So now I'm going to say V का next is equal to V. And what is that going to do? Point back to itself. ये बन जाएगा. It's going to point back to itself. V मेरा सारा setup हो गया.
but V is just something temporary, right? I want to connect this to my list somehow. इसको लिस्ट के ऊपर कनेक्ट करने का तरीका ये है कि लिस्ट हैंडल करने के लिए मेरे पास जो रेफरेंस नोड थी वो कर्सर थी, तो आई हैव टू नाउ से कि कर्सर इज आल्सो पॉइंटिंग टू द सेम प्लेस जहां पर आपका वी पॉइंट कर रहा था. सो यू आर गोइंग टू एंड अप विद, जब यहाँ से आप निकलोगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी, यू आर जस्ट गोइंग टू हैव दिस इनसाइड योर लिस्ट. और इसमें जब आप ऐड करते जाओगे इसी तरीके से इस एंड के ऊपर आपकी नोड्स ऐड होती जाएंगी एंड योर लिस्ट इज गोइंग टू ग्रो. दिस इज योर add element. Is somebody still in the waiting room? Yes मैम, शहीर वेटिंग रूम में, उसका मैसेज है. इस वक्त कोई भी नहीं है मीटिंग रूम में. Shahir is inside. Yes, miss, you let me in eventually. Thank you. Next we have a remove. So अब आपने remove किस तरीके से करने हैं? इसके अंदर भी you have two cases. So your one case that you have to take care of is कि अगर आपने remove किया और आपके पास एक ही element था, just because it is easier to draw, I am going to do the first one first. We just saw कि जब आप पहली element डालते हो, let's say कि वो C था, it looks like this. Looks something like this, and this is your cursor. So what you want to do over here, so अब remove में आप कर रहे हो, remove, remember remove का मतलब था remove the node after the cursor. So you are going to first say कि एक मुझे temporary pointer दो so that I can hook onto the list and decide what I need to do, और old को cursor के next के ऊपर point कर दो. So old is going to, हमारे पास है ये चीज, cursor भी यही है और cursor का next भी यही है. So old is going to point here, and then you are checking कि अगर old cursor ही है, अगर old cursor है तो that means that you just have only one node in the list that you are trying to remove. अगर old cursor है तो cursor को null कर दो, so remove this link, और उसके बाद else को अभी हम skip करेंगे, हम just old को delete कर देंगे. So this is then going to get rid of this. Okay. So एक वो case हो गया जिसके अंदर आपके list के अंदर एक ही चीज पड़ी हुई थी. Second case is going to be something like this, जिसके अंदर आपके पास list के अंदर कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, and you have, your cursor is over here because that's how we draw our list, and you are saying remove karo, remove the node after the cursor. You are going to come over here, you're going to say old को cursor के next पे point कर दो. So now cursor का next जो है वो A है, A old is going to point over here. So again hook onto the element that you need to delete, और अब old is not equal to cursor, so we are going to say ये वाला आप काम करो, and you can kind of guess. इसने अब करना ये है कि इस लिंक को अपडेट कर देना है कि ये वाली चीज अब इधर पॉइंट करिए और ये निकल जाए आपके लिस्ट के अंदर से. So C should be pointing to B so that you are ready to get rid of A. So you are saying कि cursor के next को old का next कर दो, which is going to be this. I am going to, मैं इसको ऊपर से draw करूंगी. तो cursor के next को, old का next ये है. So cursor के next को अगर मैंने old के next के ऊपर किया, so ऊपर वाला वो link जो है वो ऐसे करके update हो गया. Your new list is ready, and you can just now say कि इसको delete कर दो. So this is your remove item. So वो जो हमने अभी जितने हमने सारे के सारे ये functions किए हैं, add etc. you are used to, लेकिन जब advanced आप use करोगे you are going to see something like this happening. आप लोगों को इसका code मिल जाएगा, and you are going to get a couple of exercises to play around with so that you can see के इसका print कैसे बनाना है, और जब आप advance करोगे तो वो इसी तरीके से आ रही होंगी आपकी values. Basically this is showing you, ये जो comments में लिखा हुआ है ना, ये basically they haven't made a print, उन्होंने comments के अंदर बताया हुआ है कि this is what is inside the list as you're doing this, और cursor को designate करने के लिए उसके साथ एक asterisk डाल दिया. So if you create a playlist
ऑब्जेक्ट ऑफ अ लिस्ट और उसके अंदर एक एंट्री ऐड करते हो तो वो आपको लिस्ट में एक एंट्री नजर आ रही है। सेकेंड एंट्री ऐड करते हो, यू आर सीइंग 2 एंट्रीज एंड यू आर सीइंग कि जो पहली वाली एंट्री थी कर्सर उसी के ऊपर पड़ा हुआ है और नेक्स्ट एंट्री इधर आ गया। एंड योर एड इज बेसिकली एडिंग, क्योंकि वो कर्सर के आगे ऐड कर रहा है तो बेसिकली आपके लिस्ट के फ्रंट के ऊपर चीजें ऐड होती जा रही हैं। थर्ड वाली आपने डाली तो वो इस एलिमेंट ये वाली चीज ऐड हो गई। एंड व्हेन यू हैव दिस लिस्ट एंड यू से कर्सर को एडवांस करो, so what is going to happen is कि ये वाला जो एस्टेरिस्क है ये यहाँ पर आ जाएगा। एंड जिस तरह से मैंने पहले, क्योंकि आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया था, पहली स्लाइड के ऊपर मैंने किया था, दिस इज एवरीथिंग इज गोइंग टू काइंड ऑफ रोटेट अराउंड। सो सी के आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो कर्सर के साथ आपने यहाँ ले आई हो, सो दैट इट लॉजिकली इट लुक्स लाइक द एंड ऑफ द लिस्ट, और फिर बाकी वैल्यूज जो है वो रीअलाइन होके इस तरीके से आपके पास फिट इन हो जाएंगी, बिकॉज ये वाली वैल्यू इसके आगे है। सो यू कैन काइंड ऑफ इमेजिन कि ये जो लिंक चाह रहा होगा ये इसके आगे यहाँ से जाके कनेक्ट हो जाएगा। So they've done 2 advanced calls and your list is now looking like this. और अब अगर आप कहते हो remove, तो remove if you remember was कि cursor के अगले वाला value जो है उसको remove करना है। So if you remove, you're going to be left with these two because ये वाला value जो है ये हट गई होगी। And then एक और add करके दिखा दिया। So in your exercises and in your exams, you're going to get इससे similar किस्म के exercises, और जब आपको इसका practice दिया जाएगा तो you'll get a print to do and a couple of other things as well, so that you can see circle list के अंदर किस तरीके से move around किया जा सकता है। Essentially these are your basic configuration changes that you can get inside the list. You can kind मैम एक सेकंड पीछे जाइएगा। इधर हाँ जी मैम एक बार मैम, मैं इसमें एक चीज सोच रहा था कि जो एल्स वाला पार्ट है इसका, are 2 of you speaking at the same time हाँ or is it one person? पहले दोनों कह रहे थे, अब एक ही कह रहा है। बारी बारी जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था मैम कि ये जो आपने कोड लिखा हुआ है एल्स वाला पार्ट, जी जी, both of you are cursor.next वाला, asking the same thing, ये वाली जी ये। तो मैम मैं यही पूछ रहा था आपसे कि इवेंचुअली हमने ये करना है ना रिमूव वाले फंक्शन में कि जो भी कर्सर जहाँ पे भी है उसके नेक्स्ट वाले को डिलीट करके लिंक को उसके अगले वाले के साथ हम कनेक्ट करते हैं। Just reverse what you are saying, मैम पहले हम लिंक यहाँ अपडेट पे करो फिर डिलीट करो। मैम मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ये कि cursor.next is equals to cursor.next.next as in arrow next arrow next। चलो मुझे लिख लेना दो जो आप कह रहे हो। एल्स में आता हूँ। एल्स की जगह आप लिखना क्या चाह रहे हो? cursor arrow next is is equal equals to to cursor arrow next arrow next। let's see, बस। so you're saying cursor का next is equal to yes you can, क्योंकि इवेंचुअली हमने अगले को लाना है और उसके अगले से लिंक करना है। yes you can, but old आपको फिर भी चाहिए ताकि आपने ये करना है। वो तो मैम इफ एल्स के बाहर ही है ना, तो उसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे ना, जी, तो जी, ओल्ड तो वैसे ही आ जी जाएगा। जी जी जी। तो मैम एक बार एडवांस बता देंगी दोबारा से वो क्या कर रहा था? Advance is just doing this. Oops. Advance किधर क्या है? ये this is your advance and that is just doing this कि आपके cursor को वो कह रहा है कि I just want to move the reference point of the list. Yeah. So what you are basically doing is you are just saying कि अब मेरा cursor जो है cursor is equal to cursor का next. So can you see कि ये चीज हो जाएगी basically? cursor इधर आ जाएगा
और ये नहीं होगा। ठीक है मैम, सही है, वो कर्सर को मूव कर रहा है नेक्स्ट एलिमेंट पे, और ठीक उसके है, बाद सही है। फिगर आउट करने के लिए कि वो लिस्ट की शक्ल क्या होगी, अगेन जस्ट मूव इट, क्रिएट इट बैक इनटू दिस ओरिएंटेशन, ताकि आपको फ्रंट और बैक से ना कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि जब आप ऐसे करते हो आपको लगता है वो फ्रंट के ऊपर आ गया, एसेंशियली आपकी लिस्ट की ओरिएंटेशन वही रहेगी। So you're just going to say कि अगर मैंने इसको रीड्रॉ करना है so that I'm clear in my mind what is going on, you are going to say LAX यहाँ पर है, कर्सर इधर पॉइंट कर रहा है, और फिर लिंक्स जो है वो उसी तरह से रहेंगे। So LAX के अगली वाली एलिमेंट जो है that is still going to be your MSP. So just have to figure out कि ये किस तरीके से मैनेज कर रहा है अपने आप को। मैम जो भी कर्सर होगा वो इवेंचुअली बैक होगा, और कर्सर का जो भी अगला होगा वो फ्रंट होगा, राइट? जी, हमने that is the configuration we have decided upon for this list. ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये हर टेक्स्ट बुक में यही होगी, हर इम्प्लीमेंटेशन में ये नहीं होगी, लेकिन बेसिकली इधर ऐसे डिसाइड किया हुआ है कि हमने अपने लिस्ट के बारे में ऐसे सोचना है कि कर्सर जो है वो बैक के ऊपर होगा। And I'm saying this because अब आपके क्विज वगैरह के अंदर आपको क्वेश्चन आ सकता है जिसमें मैं थोड़ा सा इसकी ओरिएंटेशन बदल दूं, या आप मे बी किसी और टेक्स्ट बुक से देखो तो उसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी बड़ी हो, थोड़ी सी चेंज हुई हो। द थिंग दैट यू जस्ट वांट टू होल्ड ऑन टू एज काइंड ऑफ कैनन, या वो चीज जो बदलती नहीं है अक्रॉस एनीथिंग, इज द फैक्ट के लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि इट्स अ लिस्ट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डायनामिकली एलोकेटेड पीसेस ऑफ मेमोरी जो कि अपना सीक्वेंस ऐसे होल्ड करते हैं कि हर लिस्ट ने अगले वाले लिस्ट का एड्रेस होल्ड किया होता है। सो दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट चेंज। दूसरी चीज, डबली लिंक लिस्ट में आपने देखा था कि वो लिंक खाली एक नहीं होता, उसने अपने पिछले वाले नोड को भी हुक किया होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज, डबली लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करेगी। तीसरी चीज आज हमने देखी है कि सर्कुलर वाले के अंदर आपकी जो आखिरी वाली नोड है वो नल के ऊपर नहीं पॉइंट कर रही होती, वो पहले वाले के ऊपर पॉइंट करती है, ताकि अगर आप सीक्वेंस में जाते जाओ तो यू एंड अप विद अ सर्कल। These are the three kind of basic elements that we want to pick up. अब वो जो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट करके आपको कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगी, असाइनमेंट आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्लाइटली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन वो इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर कवर हो जाएगी। So is just this के आपको इसके अंदर वेरिएशंस काफी सारे, कैन यू नाउ काइंड ऑफ प्रिडिक्ट कि यू कैन आल्सो हैव अ सर्कुलर लिस्ट जो कि डबली लिंक्ड है? You can, right? So circular और एलिमेंट के पीछे बैक आ जाएगा। So circularly doubly would look like something like this. Oops. दोनों साइड के ऊपर एक एरो नहीं पॉइंट कर सकता, लेकिन एक एरो इधर पॉइंट कर रहा होगा और एक इधर, एंड देन यू विल से कि एक को मैं अपना, किसी एक को आप कहोगे कि इसको मैं रेफरेंस पॉइंट बना लेता हूं, तो आई कैन कॉल दिस अ कर्सर। और यू कुड इवन डिसाइड, अगर आप थोड़ा सा अपने डबली लिंक लिस्ट वाला अपना कॉन्सेप्ट इसके अंदर काइंड ऑफ इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो यू कुड आल्सो से कि वी हैव अ सर्कल लिस्ट बट वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ डमी सेंटिनल ओवर हियर। यू रिमेंबर हमने डबली लिंक लिस्ट के अंदर दो नोड साइड के ऊपर रखी हुई थी जिन्होंने कुछ होल्ड नहीं किया हुआ था, लेकिन बस वो थी बताने के लिए कि आपका लिस्ट एंड हो गया। सो यू कुड आल्सो डिसाइड टू हैव अ सर्कुलरली डबली लिंक्ड लिस्ट जिसके अंदर आपने एक नोड डाली हुई है और आपने कर्सर नहीं रखा हुआ, आपने कह दिया कि दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, सो आई एम गोइंग टू कॉल इट रेफ और व्हाटएवर, ताकि आप जब इधर से स्टार्ट हो तो आपको, अगर आपने प्रिंट करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट हो गए तो आप कहोगे प्रिंट करते जाओ और यहाँ इधर आके रुक जाओ। तो जब आपके नोड के नेक्स्ट के अंदर वापस रेफरेंस आ गया तो इसका मतलब है कि आपकी लिस्ट एंड हो गई है। सो यू कैन हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यही हैं कि लिंक होता है, लिंक दोनों साइड के ऊपर हो सकता है, you could have the link going back to the front ताकि वो circle बन जाए, and you could have sentinel nodes to denote, to designate the end of your list। और अक्सर औकात आपकी लिस्ट का ना एक फ्रंट और बैक conceptualize किया जा रहा होता है, because that is how you would think of a list, right? even अगर आपने circle में hold की हुई है तो फिर भी you would want to know कि अगर आपने प्रिंटिंग करनी है या कोई भी काम करना है तो आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिधर से आप कहोगे इधर से शुरू हो और फिर इसको खत्म करो। So we are kind of conceptually we're done with lists, but we're going to, sorry मैंने slides ही बंद कर दी I think. We are conceptually done with lists, but we are going to do some exercises. Am I back on my slides?
So we're going to do some exercises and practice activities, and we're going to play around with a couple of different combination configurations. अब कोई नई configuration नहीं आने वाली है, अब आप लोगों ने combinations के साथ ही kind of experiment करना है, but we're going to do things like के linked list को reverse करो, linked list के अंदर से sum निकालो, एक नई किस्म का linked list बना लो, इस तरह की चीजें करो, and we're going to take a couple of lectures to do some practice. लेकिन बेसिकली हमारा लिंक लिस्ट जो है वो एज अ कॉन्सेप्ट वो एंड हो गया। ये थोड़ी सी एक्टिविटी रह गई है, इसको नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। मिस लाइक हमें पूरी लिंक लिस्ट बनानी आ सकती है? नो, इन योर एग्जाम नो, बट इन योर असाइनमेंट यस। वैसे असाइनमेंट में ठीक है, मैं पूछ फाइनल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रहा था कि फाइनल एग्जाम में लैब पार्ट में ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे पूरी लिंक लिस्ट बना के दो। नहीं, बस ठीक है। बस जिस तरह की आपको एक्टिविटीज मिल रही हैं लैब्स के अंदर, the length of the activities that you're expected to finish during the lab, उस लेंथ का क्वेश्चन मिड टर्म या एग्जाम में आ सकता है। मैम लेंथ तो लैब की भी लंबी थी लेकिन टाइम कम था, तो आपने बाद में थोड़ी सी टाइम एक्सटेंशन खुद ही दे दी थी। कौन सी वाली लैब? अभी जो क्लास टेस्ट हुआ था, जो अभी हम थोड़ी देर पहले डीबग कर रहे थे। वैसे वो जल्दी, बट होपफुली विद प्रैक्टिस यू विल। वो एरर की वजह से अटके हुए थे, वरना तो आई थिंक हो आप गया ही लोगों था, को सब कर कुछ लिया चालू हुआ हो था, जाता यू है। आर जस्ट स्टक ऑन द क्रैशिंग, बट लाइक क्रैश पार्ट। with experience you will be able to do it within the allocated time. I am going to call out attendance. Abbas Moiz, Abdul Rafi, Present, ma'am. Abdullah Jawad, प्रेजेंट मैम। Abdullah Yusuf, Ehsan Ashfaq, प्रेजेंट मैम। Ayman Yaqub, मैम मेरा इंटरनेट स्लो है। अब्दुल्ला यूसुफ प्रेजेंट। किसका इंटरनेट स्लो था? अब्दुल्ला यूसुफ मैम। Abdullah Yusuf is present. Ayman is present. Ali Malik, Danish, प्रेजेंट मैम। Farhad, Farhan Elahi, Present. Fatima Javed, Present, ma'am. Fazila, Present, ma'am. Hamad Ejaz, प्रेजेंट मैम। Hamza Lighari, Present, ma'am. Hassan Shahid, Hassan, Present, ma'am. Huzaifa, Present, ma'am. Jahanzeb, Present. Maham, Present, ma'am. Majid Iqbal, मैम माजिद कह रहे उसके नेट का इशू है, वो क्लास में है। Mehran Ali, Present, ma'am. Mehroz, Present. Mehwish Noreen, Present, ma'am. Maaz Ahmed, प्रेजेंट। Shahir, Present, miss. Mohammad Rahman, Present, ma'am. Mohammad Ahmed Abbasi, Yes, ma'am. Aram Latif, Present, ma'am. Mohammad Fasiyuddin, Present, ma'am. Norez, Qasim Munir, Present, ma'am. Mohammad Sadiq, Present, ma'am. Mohammad Uzair, Yes, ma'am. Muzammil, Present, ma'am. Rafia, Present, ma'am. Raisha Baz, Sabaha, Present, ma'am. Safi Zahid, Yes, ma'am. Saleha, Ma'am, Rashtra's present, ma'am. मैम is Saleha मैम here? सफी प्रेजेंट। जी सफ़ी की भी लग Yes, गई, ma'am. Present. सालेहा की भी लग गई है। सैयद मोहम्मद अब्बास, Present, ma'am. Zaim is here, Taimur,
Present, ma'am. Zishan Zahoor Present, ma'am. and Zobia. Present, मैम ma'am. नूरेश प्रेजेंट है मैम. Norace is now present. Thank you, ma'am. Abbas is absent. Abbas Moiz, Ali Malik, Farhad Rahman. Ma'am, Majid Iqbal present. Ali Malik is present. Majid Iqbal is present. मैं absent call out कर रही हूँ. Abbas Moiz, Farhad Rahman, Hassan Shahid, and that's it. ठीक है, you're free to go. Okay, ma'am. Allah Hafiz. Dafis. No, yes, ma'am. Dafis.